Subscribe Newsfront and press the bell icon for latest news and updates. Welcome to chat room with Newsfront, and it's a pleasure to have you, Visita Bagh, with us and talking about your career aspirations. और आप आगे क्या हमारे लिए अपने फैंस के लिए क्या क्या प्रेजेंट करने वाले आगे फ्यूचर में, so we'll talk about that. Advertising, web series, movies, you have done it all. So what is the best I was in all also these? a ramp model. I have done ramps too. But in 2008, we saw influx of foreign models because we all know there was an economic depression. We saw many influx of Firang models. Then I got replaced. I had to stop doing modeling. Ramp walk. Okay. So because those girls are very tall. Their average height is 5'10", 5'11", and I'm just 5'7". Okay. So what difference did you find in all these in all these fields, modeling and web series, movies? What difference did you find? I mean, more what was किसमें ज़्यादा आपको struggle करना पड़ा as an actor and as a person also? Look, I always wanted to do films. That's why I stayed away from television, because I have a huge respect for that format and people who are working in television, but somehow I don't see myself doing television because too much hard work. Like एक ही शो के लिए आपको 7-8 साल एक ही कॉस्ट्यूम में आपको तैयार होना है, लाइंस बोलना है, वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. मैं बहुत ही जल्दी एक कैरेक्टर से बोर हो जाती हूँ. 1 month, 2 months, that's all. I need a different character to portray. I wanted to do films, and my films did well. Babu Masha Bandukbaz did quite well, and I did some other festival movies which got many awards, accolades. But then this depression came in. This Corona thing. Sorry, Lockdown. Corona lockdown. Perpetual state of depression for everybody, but this Corona thing came in, and we don't have any option. We have to release our projects in OTT only. So film करो या web series, सारे तो release होने वाले हैं OTT पे. अभी क्या difference बनता है उसका? And web series का एक ही है कि वो उनका duration 3-4 फिल्मों का होता है ना? वो longer format है थोड़ा सा. That's the only difference. Okay. Then tell me about your first break. Episode wise they design it. Every episode has a high point, low point, climax. वो है एक format. ठीक है. So tell us about your first break, जो आपका बंगाली मूवी में आपको जो मिला था, तो वो कैसे हो? मुझे तो लगता है अभी भी मुझे मेरा फर्स्ट ब्रेक नहीं मिला है. वो I get a break, I do something, then after a few months people forget me, then फिर से मुझे शुरू से शुरुआत करनी पड़ती है. वो चल ही रहा है मेरा, तो I don't know मेरा पहला ब्रेक क्या है, क्या होगा, क्या था. Okay. So how do you approach directors or filmmakers? So do you have an inclination towards one genre, or you just spread out like ये कहीं भी मतलब any filmmaker, any good filmmaker, and I'll do it? Or do you have a choice? Now it's like that. Any good filmmaker who is willing to work with me, I will do that project. कि पहले होता है आप किसी के साथ काम करना चाहते हैं, अरे वो इंसान भी तो होना चाहिए जो वो मेरे साथ काम करना चाहे. है ना? मुझे क्रिस्टोफर नोलन के साथ काम करना, उन्हें थोड़ी पता है विदिता बाग एग्जिस्ट करती है इंडिया में, नहीं ना? तो जो मेरे साथ काम करना चाहे मैं उनके साथ काम करूंगी. एंड नॉट एनी पर्टिकुलर जॉनरा. पहले मैं सोशियो पॉलिटिकल जॉनरा में बहुत काम किया है मैंने, बट उसमें मेरा एज एन एक्टर बोलिए मेरा ग्रोथ नहीं हो पा रहा था, या मेरा रीच ज्यादा नहीं हो पा रहा था ऑडियंस के पास. देन आई हैव डिसाइडेड आई विल वर्क ऑन एवरी जॉनरा. Okay. So let's talk about Bandukbaz. Were you nervous when you were acting in front of Nawazuddin, such an established actor? No, I was not nervous. In fact, Nawaz ji, jab Nawazuddin, the
नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं बने, तो उससे पहले भी मेरा बात चल रहा था काफी फिल्मों के लिए, मैंने ऑडिशंस भी दिए थे, शॉर्टलिस्ट भी होती थी, देन समहाउ नहीं हुआ. आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम, आई लव हिज वर्क, बट मैं डरी नहीं हूँ, क्योंकि उनका जो राइज है मैंने अपने आंखों के सामने देखा है. एंड एज एन एक्टर अगर मैं डर जाऊंगी सामने वाले एक्टर से, मैं काम कैसे करूंगी, है ना. बट मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड ही इज अ वेरी हम्बल पर्सन. अपने को एक्टर को बहुत इजी फील करवाते हैं, कंफर्टेबल फील करवाते हैं, तो डरने की सवाल ही नहीं है. Okay, but how did you prepare for that role? It was very rugged role. प्रिपरेशन का टाइम मिला ही नहीं मुझे. आई रिप्लेस चित्रांगदा सिंह मैम, एवरीबॉडी नोज. तो मुझे कंफर्म किया गया रातों रात, मैं मतलब रात को कंफर्म किया गया, नेक्स्ट डे मैं सेट पे पहुंची और मुझे लाइंस दिए गए, मुझे तैयार करना था. बट क्या है, मुझे राइटर के साथ कुछ वक्त स्पेंड करने को मिला. आई सैट विद द राइटर, उन्होंने मुझे डायलॉग्स में हेल्प किए. एंड मैं क्लोजली फॉलो कर रही थी वहां के लोग किस तरह से बात करते हैं, लोकल डायलेक्ट क्या है. Okay, नवाज so you picked up it very quickly. डायरेक्टर हेल्प मी टू. Okay, okay. You always have to be ready, ever ready. कब क्या opportunity आ जाए, you never know. तो आपने अभी शोले गर्ल भी एक फिल्म की थी, वो बिल्कुल टोटल कॉन्ट्रास्ट थी फ्रॉम बंदूकबाज. देयर वाज मेकअप एंड एवरीथिंग. So how was the, I mean, क्या डिफरेंस था और किसमें ज्यादा मजा आया दोनों में? नहीं, वो अलग जॉनरा है. आई कांट से. बाबू मशा बंदूकबाज वो नवाजुद्दीन जी की फिल्म है. ही इज प्लेइंग द टाइटल कैरेक्टर, एंड शोले गर्ल में आई एम प्लेइंग द टाइटल कैरेक्टर. तो आई एम देयर इन एवरी फ्रेम, एंड मुझे एक्शन करने को मिला. इट्स अ बायोपिक. आई गॉट टू स्पेंड टाइम विद द रियल शोले गर्ल, रेशमा पठान, उनके स्टोरीज सुने. तो इट्स अ वेरी एनरिचिंग थिंग, very special project, very close to me, close to my heart. Yeah, because it's about people who are in the background. तो अभी आपने मूवी भी की, इस टाइम पे आपने काफी स्पॉट बॉयज वगैरह इन सब से भी बात की होगी. तो उनका इन्वॉल्वमेंट कैसा रहता है मूवी मेकिंग में? डू दे फील सो पैशनेट अबाउट दैट वर्क, और वो उनके लिए रेगुलर वर्क है कि ठीक है? So I mean, movie making is a team work. Sub director, he is the captain of the ship. एंड देन बाकी सब जो है अपने काम करते हैं. अगर सब अपना काम बखूबी से नहीं निभाएंगे, एक अच्छी फिल्म बन ही नहीं सकती. वो स्पॉट बॉय, लाइटमैन, पर्सनल बॉय, मेकअप आर्टिस्ट, एक्टर्स, सबको इक्वली एफर्ट देना पड़ता है. बट हम एक्टर्स लकी हैं. सारा क्रेडिट हमको मिल जाता है, बट ये सही नहीं. सब मिलके काम करते हैं तभी एक मूवी सक्सेसफुल होती है. एंड मूवी बनने के बाद एडिटर, पीआर, है ना, everything. Yeah. 70s से 2020s में आ गए हैं, बट आई थिंक टेक्निकलिटी सब कुछ चेंज हो गया है. एंड डू यू फाइंड इट इजी नाउ इन द इंडस्ट्री दैट इट हैज बिकम मोर ओपन एंड मोर रीचेबल एंड मोर कनेक्टेड, एंड बिकॉज वुमेन सेंट्रिक स्क्रिप्ट आ रही है एंड स्क्रिप्ट सेंट्रिक मूवीज भी आ रही है. तो डू यू आई मीन या वेरी ओपन. अभी तो सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, स्पेशली लड़कियों के लिए. पहले लड़कियों के लिए इतने कैरेक्टर्स लिखे नहीं जाते थे. अभी बहुत वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स बनने लगे हैं. लड़कियों को फैसिलिटीज दिया जाता है. एक यूनिट में पहले सोचा नहीं जाता था कि अगर लड़की है उसे वॉशरूम जाना है, उसके लिए कुछ मतलब बंदोबस्त नहीं होता था, खुले खेत में जाना होता था. आप समझ रहे हैं. और अभी लड़कियों के लिए या अगर हीरोइन के लिए तो होता ही है, बट फीमेल क्रू के लिए भी असिस्टेंट डायरेक्टर्स या हेयर स्टाइलिस्ट जो भी हो गए, तो उनके लिए भी एक होता है कि वो रेस्ट रूम वगैरह, उनका खाने पीने का ध्यान रखा जाता है. तो विच इज अ बिग इम्प्रूवमेंट आई गेस, जो पहले नहीं था. So how do you see yourself in movies 5 years down the line? I don't know what will happen after 5 years. Everything is very uncertain now. Let's see. किस्मत मुझे कहाँ लेके जाती है. बट इतना है कि I will keep working hard and I will give my 100%. जो मेरे हाथ में है उतना मैं करूंगी. बाकी it's all luck, destiny and many other factors. So what kind of movies or filmmakers you want to get associated with in the future, or actors?
वही सेम आंसर जो मेरे साथ काम करना चाहेंगे। लगता है कि संजय लीला भंसाली के साथ एक फिल्म मिल जाए या करण जौहर एक फिल्म करनी ही करनी है, तो तब ये सबके वो मैं अपने ड्रीम्स बचपन में होते हैं। सोचती थी, अभी मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती हूँ। वही मेरे सोचने से कुछ नहीं होता है, सामने वाले को भी सोचना पड़ेगा। तो आई हैव टू बी दैट केपेबल। मेरा उतना क्या कहते हैं डिमांड होना चाहिए कि संजय लीला भंसाली सर भी मेरे साथ काम करना चाहे। आई डोंट नो इफ आई विल एवर बी इन दैट पोजीशन, बट या आई एम ओपन। जो भी मेरे पास अच्छा प्रोजेक्ट लेके आएंगे मैं काम करूंगी। ओके, बट हु लाइफ को इज योर सिंपल बना दिया। फेवरेट एक्टर जिसके साथ मतलब अगर कोई, मतलब यू विल नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर वो साइनिंग एक द फेवरेट तो नहीं है, बहुत एक्टर्स हैं। और तो और जो एक्टर्स इंस्टाग्राम में भी रील्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, वो भी मुझे पसंद है। अब ए लिस्टर्स को तो मतलब सब पसंद है। अक्षय कुमार जी हो गए, आमिर खान, शाहरुख खान। अभी न्यू एज एक्टर्स में विक्की कौशल हो गया, ऐसे बहुत हैं। मुझे गौरव गेरा एज अ कंटेंट क्रिएटर बहुत पसंद है। और भी बहुत लड़कियां भी बहुत पसंद है जो जो इंस्टाग्राम में नए अच्छा काम कर रहे हैं। आपने गौरव गेरा का नाम लिया, so do you also have that comic thing, comic style in you? Do you do some comedy, like comic stand-up comedy or anything like हाँ, that? मुझे एक कॉमेडी रोल अब तक मिला नहीं है, बट मैं करना चाहती हूँ। आई थिंक मैं कर सकती हूँ। सेंस ऑफ ह्यूमर तो अच्छा ही है। Hope so. And हंसमुख what लड़की kind? हूँ, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हमें And दांत देखिए। of course, I think you'll shine in that, in any comic role. या You have that spontaneity in you, no? That या thing. So tell us about your this. I just read about Teen Do Panch. What is this project? 325 इज अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म जो बाद में वेब सीरीज बना लिया गया है। इट्स नाउ ऑन हॉटस्टार क्विक्स। इसमें मैं और श्रेयस तलपदे जी हम मतलब शादी को 7 साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे हैं। देन वी डिसाइड टू अडॉप्ट वन किड। हम अडॉप्ट करने जाते हैं, पता चलता है ट्रिपलेट्स है, तो हमें 3 बच्चे अडॉप्ट करना पड़ता है। देन आई बिकम प्रेग्नेंट। Okay. तो हमारे एक टाइम पे बच्चा नहीं था, एक बच्चा भी नहीं था, अब बच्चे ही बच्चे हैं। बट कॉमिकल वे में बहुत चीजों पे हमने हाईलाइट किया है। अडॉप्शन पे, अडॉप्शन कितना जरूरी है। और मतलब उनके साथ कई लोग भेदभाव करते हैं, अपने बच्चे और जो अडॉप्टेड बच्चे हैं भेदभाव करते हैं, अपने बच्चे नहीं मानते उन्हें, उस पर भी हाईलाइट किया है एंड अडॉप्शन प्रोसेस। तो देखना चाहिए लोगों को। So how was it? एंटरटेनिंग How वे was में it? सोशल मैसेज भी दिया गया है। Okay. एंड So इन दिस how was कोरोना it? पीरियड बहुत बच्चे ऑर्फन हो गए हैं, हमें आगे आना Yes. चाहिए। अडॉप्ट नहीं कर सकते, एटलीस्ट उनके स्टडीज वगैरह तो फंड कर सकते ही हैं। How was it acting as a mother at such a younger age? आई एम नॉट वेरी यंग। मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स हैं उन्हें मतलब 18-19 इयर्स होते ही उनके बच्चे हो गए, तो अब उनके बच्चे बड़े Oh. भी हो गए। तो उन बच्चों को देख के मुझे थोड़ा डर लगता है। ऑलमोस्ट मेरे हाइट के हो गए हैं वो बच्चे। और मुझे देख के थोड़ा शर्माते भी हैं। तो आई एम नॉट यंग इनफ टू प्ले अ मदर, बट मदर बनना कोई छोटा मोटा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। Not at all. डिफिकल्ट काम है। और सेट पे अगर 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे के टेंट्रम्स, उनका मूड स्विंग्स, ये सब हैंडल करना आसान नहीं है। So set पे कैसा माहौल रहता था when there were 3 kids together, 3 or 5 kids together? मैं तो डरी सी रहती थी, बट श्रेयस जी हैंडल कर लेते थे। Okay. मैं बस चॉकलेट्स देती थी, ब्राइब करती थी, बट उन्हें आता था। To बच्चों को engage them. खेल खेल में बिजी रखते थे। Okay. So how is Shreya Talpade as a co-actor, and कुछ आपने सीखा उनसे, because he has been into हाँ, movies he is from. mind blowing, he is superb। और उनका कॉमिक टाइमिंग कमाल का है। इमोशनल सीन्स भी आसानी से कर लेते हैं। Okay. So how was it all together in working in such a big project? ग्रेट ग्रेट। ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स करते रहना चाहिए।
एंड जिसमें एंटरटेनमेंट भी हो, सोशल मैसेज भी हो, आपके को एक्टर्स भी अच्छे हो, डायरेक्टर अच्छे हो, तो एज एन एक्टर भी मेरा ग्रोथ होता है, मुझे सीखने को मिलता है, Okay. ऑडियंस से And भी प्यार any, मिलता है. of course, of course. And what would you want to tell newcomers, especially girls who are trying their luck in the industry? Because अभी तो OTT पे ही mostly focus है इतना because बोलोगे of ट्राई योर COVID. लक, ट्राई योर लक, अगर किस्मत में है होगा. इट्स अ लक ड्रिवन इंडस्ट्री, इट डजंट मैटर समटाइम्स कितना भी हार्ड वर्क आप करते हो, आपको फ्रूट नहीं मिलता है. मैंने भी कई साल मैं स्ट्रगल कर रही हूँ. अब भी मुझे मैंने जो सोचा था वो मुकाम मैंने हासिल नहीं किया है, और मुझसे कई ज्यादा टैलेंटेड लड़कियां थी जो इंडस्ट्री में आई, उन्हें काम नहीं मिला, वो वापस चले गए, और कुछ कम टैलेंटेड लोग भी आजकल करोड़ों में कमा रहे हैं. तो इट्स ऑलवेज नॉट लाइक दैट, एंड आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट यू, बट आप एक बार ट्राई तो करो, अगर करना चाहते हो करो, और अपने क्राफ्ट पे काम करो. अगर आप एक्टिंग करना चाहते हो, आप सिर्फ वो शो शा देख के, स्टारडम देख के मत आओ. आप उस एक्टिंग को पहले समझो, सीखो, प्यार करो अपने क्राफ्ट को, देन यू कम. And there's so many scams which is around in the industry which has coming up these days. So how, does it bother you if the scams kabhi drug peddling, kabhi kuch, and the recent one? So does it bother you somehow? It's हाँ, ये tarnishing लोग the अप्रोच industry. करते ही रहते हैं हमेशा. दे विल ट्राई टू अप्रोच, बट आप अपना इंट्यूशन यूज कीजिए, आप अपना सिक्स सेंस यूज कीजिए. इनसे तो रेगुलर बेसिस में डील करना पड़ता है. ऐसे लोग लाइफ में आते रहते हैं, और कई बार फ्रेंड बन के आते हैं, कई बार आपको गाजर देते हैं आपके सामने कि आपको रातों रात बड़ा स्टार बना देंगे. बट आप अपना दिमाग यूज कीजिए एंड उनसे दूर रहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो ग्रुप्स की बात होती है, कैंप्स की बात होती है इंडस्ट्री में, हैव यू एवर फेस्ड एनीथिंग लाइक दैट? ऐसे बहुत फेस किए हैं, मतलब अभी तो थोड़ा कम हुआ है, बट पहले मैंने बहुत फेस किया है. तो वही मैंने बोला, आपको हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा. यू हैव टू स्टे अलर्ट. बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा. एंड more you show your desperation, more you show that you need work, they will try to exploit you. Nepotism, is it really that big Nepotism is a very trending word these days, but yeah. nepotism तो हर इंडस्ट्री में है. फर्क यही है कि डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर बनने के लिए एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा. यहाँ ऐसा नहीं है. यहाँ जो मोटे बच्चे हैं उन्हें सिर्फ वेट घटाना पड़ता है, एक ही है. बट नेपोटिज्म से हमें अच्छे एक्टर्स भी मिले हैं, और अगर मेरा बेटा या बेटी उन्हें एक्टर बनना है, आई विल आल्सो सपोर्ट. Of course. सिर्फ नेपोटिज्म हर चीज पे नेपोटिज्म का लेबल लगा देने से नहीं होगा. हाँ, हमें मेरा स्ट्रगल, अगर मेरे मॉम डैड इस इंडस्ट्री से होते, मेरा स्ट्रगल 10 साल कम होता. बट कांट कंप्लेन, ऐसा होगा. हर माँ बाप अपने बच्चे को सपोर्ट करेगा, और ये ऑडियंस पे है. अगर आपको नहीं देखना है, मत देखिए. अगर आप ही लोग हैं जो जिनको स्टार नहीं बनना चाहिए, आप ही लोगों ने बनाया है. अगर किसी एक्टर को सपोर्ट करना है, उनका काम देख के सपोर्ट कीजिए. उनके माँ बाप कौन है ये देख के सपोर्ट मत कीजिए. ये तो पूरा पब्लिक का ही मैं इसके लिए पब्लिक को कल्प्रिट मानूंगी. All right, and I think that will be all for our conversation. Yeah, and thank you so much, and all the best, all the very best. It was really, really, really nice talking to you. Same here. Yeah, it was really lovely, and I wish you all the best in your future endeavors.